Welcome back, dear students of BJMC 4th semester. We were doing with the paper 11, New Media. In the last lecture, we did online communication, meaning and definition. Then we did features of online communication. Today, we are going to start up with a new topic, that is Internet, characteristics, networking, ISP and browsers. Let's see what the topics to be covered today. Then first of all, we will understand कि internet क्या है. What do you understand by internet? Internet stands for interconnected network. It is something interconnected network. That is a network systems that connects million of the web servers. The full meaning of the internet can also be explained by the bunch of websites of different organizations, schools, institutions and more. With the help of the internet, the world is connected. तो जो इंटरनेट है, इंटरनेट का मतलब ही होता है इंटरकनेक्टेड, किस तरीके से इंटरनली कनेक्ट होता है और उसका जो सिस्टम है, नेटवर्किंग एरिया सिस्टम है, वो थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल्स के लोगों तक पहुंचता है विद द वेब सर्वर एंड इट इज़ टोटली connected or being explained by the bunch of websites of different organizations. दूसरे institutions में, schools में, colleges में, organizations में, हर जगह इसका कहीं ना कहीं प्रयोग होता है. So with the help of internet, the world is connected. और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरा world अब आज के ज़माने में, आज की डेट में पूरा world connected है. So the internet is the virtual networking medium that can be connected and used on various devices. सबको पता है कि जो इंटरनेट है वो नेटवर्किंग मीडियम है पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए, और उसके पास वेरियस डिवाइसेस हैं so that we can connect to each other. It enables the user to send, receive, collect, store, update, delete and many other operations of the data across the world. और इंटरनेट के ज़रिए ही हम अपने मैसेजेस दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, दूसरों के मैसेज हम रिसीव कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं सारे इंफॉर्मेशन को. जब चाहें अपने इंफॉर्मेशंस को अगर नहीं प्रोसीड फर्दर करना है तो डिलीट कर सकते हैं. और बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशनल्स मैनेजमेंट है इंटरनेट के जो हम करते रहते हैं. एंड इट इज़ गोइंग ऑन अक्रॉस द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड वाइड में इसका पूरा काम चल रहा है. Because without internet, you are not able to gather any sort of information. कोई भी टेक्निकल चीज़ें हमें करनी है तो without internet it's not possible. So internet is essentially a decentralized, self-maintained telecom, and this is a communications of the network. So it is made up of interlinking small network. जैसे कि इंटरनेट का मतलब ही होता है इंटरकनेक्टेड. सो इट इज़ मेड अप ऑफ इंटरलिंकिंग स्मॉल नेटवर्क फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट इज़ ऑल्सो द ubiquitous, borderless, global and ambient in its nature. Hence the term cyberspaces. Now you could say that जो cyber spaces है वहाँ पे भी it is interlinked. एंड इट इज़ नॉट सो कि किस तरीके से कैसे जा रहा है, बट बॉर्डरलेस है. पूरे वर्ल्ड वाइड में इसके जो कनेक्शंस हैं फैले हुए हैं. देन दिस इज़ अ वर्ल्ड दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड. द इंटर रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय द इंटरनेट एग्जिस्ट्स आउटसाइड द कन्वेंशनल geographic boundaries and comprise a single interconnected body of data, potentially amounting the single body of knowledge. So this is something जो उसकी वजह से पूरी दुनिया टिकी हुई है. एक सिंगल बॉडी है इंटरनेट कनेक्टेड जो पूरी दुनिया से कनेक्टेड है. कहीं ना कहीं लिंक उसके ऐसे जोड़े हुए हैं कि that everyone is interrelated to each other, potentially amounting to the single body of knowledge.
Internet is accessible in virtually all places on earth where access can be obtained either by wire connections or by wireless. तो इंक्लूडिंग दी सैटेलाइट्स, अगर वायरलेस है तो इट इज़ इंक्लूडिंग दी सैटेलाइट्स, जो सैटेलाइट्स की लिंक होती है उससे भी कनेक्टेड ही है, एंड द वायर कनेक्शंस आर ऑलवेज देयर. So effectively the only constraint on the access to the internet is possession of the mean of securing connection to a telecommunication systems and possessions of the basic hardware. किस तरीके से सारी टेक्निक्स के ज़रिए अपने सिक्योर करते हैं सारे कनेक्शंस को, एंड देन टू द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम एंड द बेसिक पार्ट्स ऑफ द हार्डवेयर. So this is what about what is exactly the internet you mean by. Then we are coming to the characteristics of internet. So the characteristics, just try to understand it very carefully because these are the main characteristics which are making the internet. So it can be clearly of the importance in cyber libel proceeding wars. It is global nature. नेचुरल है, जो इंटरनेट है पूरी वर्ल्ड वाइडली है, ग्लोबली है, तो इट इज़ ग्लोबल इन नेचर. इंटरएक्टिविटी, जितनी भी कम्युनिकेशन चल रही है सारी इंटरनली कम्युनिकेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, तो इंटरएक्टिविटीज़ भी प्रोसीडिंग प्रोसेस है. इट पोटेंशियली टू शिफ्ट द बैलेंस ऑफ पावर इन द ऑफलाइन वर्ल्ड ऑल्सो. इसके अंदर इतनी ज़्यादा काबिलियत है, इतनी ज़्यादा बैलेंस्ड पावर है कि कोई चीज़ टेक्निकली अगर, और ज़रूरी नहीं कि एवरी टाइम यू हैव टू बी ऑनलाइन, सम थिंग्स आर ऑल्सो बीइंग जनरेटेड जहाँ पे आप ऑफलाइन भी रह करके चीज़ें देख सकते हैं. ईज़िली एसेसिबल है, एनोमिनिटीज़ है, इट्स फैसिलिटेशंस ऑफ रिपब्लिकेशन, द प्रोमिनेंस ऑफ इंटरमीडिएटरीज, इट रिलायंस ऑन हाइपरलिंक्स एंड हाइपरटेक्स्ट. जब हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं so there we have to use put the hyperlinks as well as the hypertext to get the information to access the knowledge. Its long-term impact the use of permanent achieves, और जो उसका इम्पैक्ट है उसको जब हम प्रॉपर तरीके से एसेस करते रहते हैं तो we generally use to get the permanent achieves of it. Its multimedia character, it is related with the characters of multimedia-ness, and it's temporarily intermediacy. It is something which is connected to the temporary also. So now we will be doing it in detail. Interconnectivity is what? Globally जो हम नेचर से अपना रिलेटेड किए हुए हैं तो वो क्या है? With regard to the IoT. IoT is here is defined as internet. So with regard to the internet, anything can be interconnected with the global information and communication infrastructure. किस तरीके से ये इंटरकनेक्टेड होता है ग्लोबली वर्ल्ड वाइड, एंड हाउ द इंफॉर्मेशन इज़ बीइंग प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, किस तरीके से लिंक के ज़रिए, एंड how we do, how it is being managed, कि सारी information is being globally informed. कोई भी process है इंडिया से हमारे तक का जाना है तो you will only proceed your information through the internet. It is in such a process. तो interconnected link ऐसे होते हैं जो वो globally आपकी information को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं, and we form the communication infrastructure, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है, जो एक दूसरे के बीच में विचार है, उनके विचार हमारे विचार, वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेटेड होते हैं और वो खुद का एक ओन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है. सो हियर वी वर टॉकिंग अबाउट द इंटरकनेक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू द ग्लोबली इन नेचर. देन थिंग्स रिलेटेड सर्विस. The internet is capable of providing things. नेचुरल है, विदाउट इंटरनेट, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो हम उसके बिना कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते.
to access the Google, to access any of the site, कोई भी हाइपर लिंक अगर हम डालेंगे तो जब तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी तो हम उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं, नथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू अस. So it is capable of providing things, related service within the constraint of things, such as privacy protections and semantic consistency between the physical things and their associated virtual things. हर एक कनेक्टिविटी के साथ साथ उसके अंदर एक प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी है कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन कब निकाल के देनी है, कब नहीं देनी है, कहाँ देनी है, कहाँ नहीं देनी है. सो एवरीथिंग इज़ इन अ वेरी सिस्टमैटिक फॉर्म एंड इट इज़ द थिंग दैट आर एसोसिएटेड वर्चुअली थिंग्स. फिर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द थिंग्स, किस तरीके से हमें ये प्रोवाइड करता है रिलेटेड सर्विस विद इन द कॉन्स्ट्रेंट ऑफ थिंग्स. Both the technologies in physical world and information world will change. जो भी रिलेटेड सर्विस है, जब हम किसी चीज़ कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो बोथ टेक्नोलॉजी इन द वे ऑफ फिज़िकल वर्ल्ड एज वेल एज द इंफॉर्मेशन वर्ल्ड, फिज़िकली जो हम चीज़ चाह रहे हैं वो मिल जाना, और एक इंफॉर्मेशन के ज़रिए भी कोई भी चीज़ वर्ल्ड में चेंज लाता है तो वी जस्ट गेट द इंफॉर्मेशन एंड दैट जस्ट चेंज द माइंड ऑफ आवर कॉन्सेप्ट. हमारी टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए और हमारी जो इंफॉर्मेशन के ज़रिए द थिंग्स आर चेंज्ड. देन वी मूव ऑन टू द हेट्रोजेनिटी. हेट्रोजेनिटी एक ऐसा डिवाइस है, इट इज़ द इंटरनेट. इंटरनेट में ही एक प्रोसेस है विच इज़ नोन एज द heterogeneous, which is based on different hardware, platforms and networks. इंटरनेट का ही एक ये पार्ट है heterogeneous, जो कि it is totally based with the different hardwares, platforms and networks, and they can interact with other device. एक हार्डवेयर से दूसरी हार्डवेयर में इसकी सारी इंफॉर्मेशन जाना, and then it can interact with the other device also. दूसरे डिवाइस से भी इसका इंटरेक्शन होता है और सर्विस प्लेटफॉर्म्स थ्रू द डिफरेंट नेटवर्क्स, और सारी इंफॉर्मेशन दूसरे नेटवर्क के ज़रिए भी इसको मिलती है. सो हेट्रोजेनेटिक इज़ द डिवाइस ऑफ द इंटरनेट इटसेल्फ. देन वी मूव ऑन टू द डायनेमिक चेंज. क्या चेंजेस आते हैं, क्या चीज़ें हैं, दिस इज़ ऑल डिपेंडेंट. The state of device change dynamically. For example, sleeping and waking up, connected or disconnected as. तो जैसे एक as a human being, when we used to sleep, everything we lost, and when we wake up, the things again started, the daily routine started. Similarly is the process of the dynamic change on the internet also. अगर इंटरनेट किसी भी तकनीकियों के कारण अगर बंद हो जाता है, so what happened, the whole world suffers. Every kind of information stops there. We cannot access any of the information. तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो there is created disturbance in every field of factors. और जब वही चीज़ फिर से कनेक्ट होने लगती है तो everyone work again restarted with the connectivity. So this is how the dynamic change process takes cover. जैसे इंसान जब सोता है तो सारी चीज़ें वहीं रुक जाती हैं, और जब जगता है तो again the day same process started. Similarly is related to the internet also. So when this is a context of device including the location and speed, moreover the number of the devices can change dynamically. तो ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम ये चलता ही रहे. Now suppose for example if we talk about in the dynamic change, अगर कोई भी चीज़, if anything is related to the Wi-Fi connection, तो वहाँ पे क्या होता है, जिस की मोबाइल एसेस या जिस की भी डिवाइसेस एसेस है वाईफाई के कनेक्शन से, and randomly the electricity just go out for 10 minutes. Now what happened?
जितने लोगों के भी डिवाइसेस कनेक्टेड थे, दे ऑल स्टॉप्स एट देयर. यू पीपल सीम्स टू बी एज इफ यूजलेस, कि अब कुछ काम ही नहीं है, नेट बंद हो गया है, जो वाईफाई था उससे हम प्रोसेस कर रहे थे, कुछ है नहीं, तो एवरीथिंग स्टॉप्स देयर. नाउ यू पीपल कीप ऑन वेटिंग फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू कम. जब इलेक्ट्रिसिटी आती है, then the Wi-Fi take their own backup recharging process, and then after 5 minutes it take the process of connectivity. So this is how the dynamic changes take places even in the internet connections. Moreover, the number of the devices can be changed dynamically, and how it is changing, I have told you the process with the one of the example of Wi-Fi. Then we are coming up to the enormous scale. The number of device that needs to be managed and that communicate with each other will be at least one other of magnitude larger than the devices connected to the current internet. जो devices का number है that needs to be managed, ज़रूरी नहीं है कि एक particular चीज़ की कनेक्टिविटी से आप एक ही छोटी सी चीज़ से 10 डिवाइसेस कनेक्टेड कर देते हैं, एंड द कम्युनिकेट विद ईच अदर विल बी द लीस्ट एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लॉन्गर देन अ डिवाइस कनेक्टेड टू द करंट इंटरनेट, और फिर वो उसके प्रोसेस से बहुत देर तक चल जाता है नहीं. लेकिन वहीं पे जब आप 10 चीज़ों को कनेक्ट करते हो तो व्हाट हैपन, द स्पीड फ्लो विल गेट रिड्यूस. जो स्पीड की कनेक्टिविटी थी, जो आपके एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस चल रही थी, उसकी कनेक्टिविटी का प्रोसेस, और एक डिवाइस से 10 डिवाइस का प्रोसेस, वहाँ पे स्पीड का फ्लो कम हो जाएगा, बिकॉज द डिवाइस विच इज़ कनेक्टेड इट इज़ एन ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड, सो इट विल क्रिएट समथिंग इफेक्ट, कहीं ना कहीं कुछ एक इफेक्ट डालता है जिसकी वजह से इट विल बी रिड्यूस. सो देयर इज़ अ इनॉर्मस स्केल, एक स्केल वैल्यू होती है जिसके हिसाब से अकॉर्डिंगली वी हैव टू कनेक्ट. देन even more critical will be managed to the data generated and their interpretations for the application purpose. This related to the semantics of data as well as the efficient data handling. So there we have to manage कि how the data is generated. जितना data होगा उसी के हिसाब से we will be connected and the information we can access. लेकिन the data is already being allotted with each and every of the devices. हर device के संग एक particular data allot रहता है. For example, if we are talking about your mobile phone, आप कोई भी recharge कराते हो any of the SIM, either it's of Jio, either it's of BSNL, Airtel, whatever, तो हर GB के हिसाब से आपको डेटा मिलता है कि आप एक महीने के रिचार्ज कराएंगे तो यू विल बी गेटिंग दिस मच ऑफ GB डेटा फ्री. अब उसकी कनेक्टिविटी में अगर आप एक ही मोबाइल से आपने 4 लोगों के मोबाइल की वाईफाई कनेक्शन कर लिया है, सो व्हाट विल हैपन, जो आपका डेटा एसेस्ट किया गया दैट विल नॉट वर्क फॉर द होल 1 मंथ. ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे एक महीने ही चले. इट कैन बी रिड्यूस, क्योंकि जहाँ एक मोबाइल का डेटा है उसे 4 मोबाइल जब चला रहे होते हैं तो उसका डेटा रिड्यूस होता है. सो नेचुरली the data will get over. So this is related to the semantics of data as well as the efficiency data handling. How you are handling your data in what process, ये बहुत ज़रूरी है. So हर इंटरनेट की accessibility और उसका डेटा जनरेट जो होता है वो अकॉर्डिंगली पर डिवाइस के होता है. वी कैन नॉट एक्सेस मोर दैन दैट. ज़्यादा कनेक्टिविटी की वजह से you lose the data information very soon. Then we move on to the safety. As we gain benefits from the internet, safety की अगर हम बात करते हैं तो जो भी हमें benefit मिल रहे हैं एक इंटरनेट से, we must not forget about the safety. हमें उसी ही के हिसाब से अपनी सेफ्टी के लिए भी जागरूक होना है. हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो कहाँ सेफ़ है. As both the creators and the recipient of the internet,
जो एक क्रिएटर है जिसने इंटरनेट क्रिएट किया है और एक रेसिपेंट जो इंटरनेट ले रहा है। वी मस्ट डिज़ाइन फॉर सेफ्टी। हमें दोनों तरफ से सेफ्टी की एक वैल्यू होनी चाहिए, हमें सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए इंटरनेट की। सो दिस इंक्लूड्स द सेफ्टी ऑफ अ पर्सनल डेटा एंड द सेफ्टी ऑफ आवर फिजिकल वेल-बीइंग ऑल्सो। इंटरनेट का मतलब ये नहीं है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी है, हमारे पास डेटा इतना है तो हम उसे सुबह से लेकर के रात तक परमानेंटली वी आर यूजिंग एंड यूजिंग एंड यूजिंग विदाउट कीपिंग इन माइंड कि हमारी इसमें कुछ सेफ्टी भी होनी चाहिए। हम जितना कम यूज़ करेंगे, जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करिए। सो दिस वे योर पर्सनल डेटा विल बी इनसिक्योर, प्लस योर फिजिकल वेलबींग विल ऑल्सो। ज़्यादा देखने से, ज़्यादा एसेस करने से माइंड पे अट्रैक्ट करता है, आइज़ पे अट्रैक्ट करता है, एंड इवन यू विल लूज़ योर कॉन्सिडेंसी इन द फिज़िकल फैक्टर ऑल्सो। तो हमें सिक्योर होना पड़ता है कि इंटरनेट हमें किस हिसाब से कितना यूज़ करना है। सो द नेटवर्क एंड द डेटा मूविंग अक्रॉस ऑल, इट मीन्स क्रिएटिंग एंड सिक्योरिटी paradigms that will scale. And the last one is the connectivity. So the connectivity enables the network accessibility and comparability. कितना एक्सेस करना है और कितना कंपैरेबल है हमारे लिए, that is very much in the for the connectivity sector. Accessibility is getting on the network, while comparability provides the common ability to consume the produced data. Accessibility क्या करती है? इन गेटिंग द नेटवर्क, हमारे नेटवर्क से कितना एसेसिबल है, कितना कनेक्ट हो रहा है, वो चीज़ हमें मिलती है। और कंपेरेबिलिटी प्रोवाइड्स द कॉमन एबिलिटी टू प्रोड्यूस डेटा, जो हमें डेटा चाहिए उसके लिए हमें कंज्यूम करने के लिए एक कॉमन एबिलिटी होती है। तो हमें कितना डेटा कंज्यूम करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. So these were the characteristics of the internet in detail, which is being explained. So today we have done the internet, what is the internet basically, and what are the characteristics. So this much is enough for today. Go through it once very carefully so that you people understand in detail that what does it means. That's all for today. Thank you guys.